देखो, फ्रीक्वेंसी इंडिपेंडेंट एंटीना एक डेफिनेशन होगी, उसके अंडर कैटेगरीज होंगी, तो उसमें एग्जांपल जो हम लोग करेंगे वो लॉग पीरियोडिक एंटीना। ठीक है, मतलब फ्रीक्वेंसी इंडिपेंडेंट एंटीना इज द टाइप ऑफ एंटीना। ठीक है, and then if we will talk about few examples of frequency independent antenna, then the log periodic antenna is a type of frequency independent antenna. It comes under this category. Okay, so frequency independent antennas. So first of all, what is the frequency independent antenna? So before starting this frequency independent antenna, you should know what were the frequency dependent antenna. So earlier you were seeing all the dimensions of any antenna. Suppose L was moving, or it was about lambda by 2, and lambda was C by F. Okay, so previous antennas were dependent on the frequency. Okay, but now we are talking about the frequency independent antenna. So what are the type? So there are majorly two examples are there for the frequency independent antenna. One is the spiral antenna, spiral shape antenna. Okay, or you can say simply spiral antenna. Okay, one was the helix antenna or helical antenna. Helix antenna is different and spiral antenna is different. Both are different examples. And number two example of the frequency independent antenna category, that is the log periodic antenna. Okay, so helix antenna was different. We have covered this antenna under the category of broadband antennas. Okay, these antennas will also provide you the broadband response. Okay, so we are moving under the major category. The major category was the broadband antennas. Then we are again classifications like frequency dependent antenna. So let me tell you what is the frequency dependent antenna. So you are known what is the frequency dependent antennas. So there are few antennas which are not directly related to the frequency, which are not directly related to the frequency. Even after all, after the few iterations, they will be dependent on the frequency, but they are not directly dependent on the frequency. What is the thing? There is some there may be some scaling factors. Scaling factor is there. Scaling factor is means, suppose you are talking about a log periodic antenna. Log periodic antenna also looks like your Yagi antenna, but it is different from the Yagi antenna. Suppose this is your log periodic antenna. I will tell you in detail what is the log periodic antenna. So this is a dipole. Okay, this is again a dipole. This is again a dipole. This is again a dipole, and all are dipoles. Okay, so what I want to say, even all the dipoles are dependent on the frequency, but this antenna completely, the complete antenna figure is means this dipole, suppose this is L1, length is L1, half length is L1 here, this is L2, L3, L4, L5. Okay, all the lengths are related with a scaling factor, are related with a scaling factor. These spacings will be also dependent on this scaling factor. Okay, the diameter of these dipoles is also dependent and related to this scaling factor.
ठीक है. So such type of antenna which depends on the angles, or you can say on the shape, and shape of those antennas are varying with respect to a specific scaling factor, comes under the category of the frequency independent antenna. मीन्स जो उनकी स्ट्रक्चर है वो शेप डिपेंडेंट है और शेप एंगल डिपेंडेंट है. मीन्स यू कैन सी हियर एंगल विल बी देयर. ठीक है. और बाकी के जो सारे पैरामीटर्स हैं वो एक स्केलिंग फैक्टर पर डिपेंडेंट है. सो सच टाइप ऑफ एंटीनास कम अंडर द कैटेगरी ऑफ फ्रीक्वेंसी इंडिपेंडेंट एंटीना. ठीक है. अब आगे बात करते हैं. तो स्पाइरल एंटीना आपका लगभग ऐसे सा होता है. एक ऐसे करके आप स्पाइरल बना सकते हो. दूसरा स्पाइरल अगर आपको बनाना है, यू कैन मेक इट टू स्पाइरल. मींस वन इज गोइंग लाइक दिस एंड सेकंड डाइपोल is moving again like this. So two dipoles may be there. So such type of spiral antennas are there. You can make it. So we will give you only the small introduction of spiral shape antennas. Okay, one spiral shape antenna you may drawn like this. Second spiral is like this. Okay, maybe MIMO antennas may also be designed. One spiral is going like this, second spiral is going like this, third spiral is going like this, and fourth one is going like this. Okay, so MIMO spiral is also there. So this is the spiral antenna. And what was the helix? Helix was something like this. Okay, so we have talked about this one. We will discuss the log periodic antenna in detail. ठीक है. तो इसमें भी स्पाइरल एंटीना में भी कुछ कैलकुलेशंस होती हैं. So we will not go in the detail. Even I have given you some introduction of the spiral antenna. So it will not come in your syllabus. ठीक है. We will discuss about the log periodic antenna. What is the log periodic antenna? So let me show you the figure of log periodic antenna. So this is the figure of log periodic antenna. It is looking like your Yagi antenna, but it is totally different from the Yagi antenna. ठीक है. यागी से बिल्कुल डिफरेंट है. वाइड बैंड कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए यूज होता है. ठीक है. इवन नेविगेशंस वगैरह में जहाँ पर हम लोगों के ILS सिस्टम्स वगैरह होते हैं वहां पर भी ये यूज होता है. इस टाइप से यू कैन सी. So one thing you are observing here, there is a dipole. There is a dipole. If we talk about this figure, ठीक है. एक dipole ये हो गया. There would be a further dipole. Second dipole is there. Third dipole is there. Fourth dipole is there, and so on. And n dipole is there. ठीक है. So अभी एक dipole पर concentrate करना है. You can see the feed line is shown in the zigzag form. Means half dipole is clear to everyone. Half dipole is this one. Okay, half dipole is connected to this feed line, and it is the second part of that dipole. Second half part of this dipole is connected to this line, and then again there is a zigzag format in the transmission line. So what is the zigzag format? So you can see this figure. There are two feed lines. There are two main wire line or ground line, you can say, and you can see one dipole. You can see there are two feed lines, one feed line and two feed line. Okay, so this one, first one is the first dipole. The half dipole of first dipole is connected to the upper feed line, and second one is connected to the lower feed line.
But when you are moving towards the second dipole, now we are at the second dipole. So you will see the alternate half dipole is connected to the upper feed line, and now the this side of dipole is connected to the lower feed line. Even if you will analyze, first dipole was connected to the upper one and the second half dipole is connected to the lower one, then again the first half part is connected to the upper one, and then again for the next dipole it is connected to the ground. Okay, and then the second one is connected to the upper side feed line, and then next down feed line, lower feed line, then upper feed line, then lower feed line, then upper feed line, then lower feed line. Okay, so we are connecting these dipoles in such a fashion, so I think in this figure it is more clearer, ठीक है. यू कैन सी, देखो फर्स्ट डाइपोल का जो हाफ पार्ट है वो ऊपर वाली फीड लाइन से कनेक्टेड है. ठीक है, इधर वाले देखते हैं हम, लेफ्ट साइड वाले अभी हम लोग देखेंगे बस. ठीक है, अब आते हैं सेकंड डाइपोल पर. सेकंड डाइपोल का जो लेफ्ट पार्ट है वो अब नीचे वाली फीड लाइन पर कनेक्टेड है, फिर नेक्स्ट वाला अपर वाली पर कनेक्टेड है, फिर नेक्स्ट नीचे वाली लोअर फीड लाइन से कनेक्टेड है, फिर नेक्स्ट अपर वाली फीड लाइन से, फिर नेक्स्ट. तो इस जिगजैग फैशन में ये चल रहे हैं. ठीक है, तो इफ यू आर ड्राइंग दिस डाइपोल एंटीना, लॉग पीरियोडिक डाइपोल एंटीना in 2D figure, so you need to show this zigzag, cross zigzag thing. ठीक है, ये क्रॉस zigzag जो है वो इस चीज को शो कर रहा है. तो ये आपका क्लियर हो गया. इफ एनीबडी हैज द डाउट इन दिस फिगर, सो यू कैन डिस्कस. सबको क्लियर हो गया ना? हम अल्टरनेट फैशन में लगा रहे हैं इसको. ठीक है, अब इसको हम लोग ये सपोज कर सकते हैं कि जो ये दो फीड लाइंस तुम्हें दिख रही थी, दो फीड लाइंस जो तुम्हें दिख रही थी, जिसे मैं अपर फीड लाइन और लोअर फीड लाइन बोल रहा था, इनमें से एक सपोज करो अपर वाली is connected to a main wire and the lower one is connected to the ground wire. ठीक है, is connected to the ground wire. ठीक है, तो मेन वायर से वी आर having several half dipoles connected in the alternate fashion, and similarly from the ground feed line, ground part of that feed line, there are several half dipoles which are also connected in the alternate fashion. ठीक है, अब देखो ये वाली फिगर देखो, अगर इसे 2D में कनेक्ट करके आप दिखाओगे, so how it will look. This one, the solid lines, the dipoles, half dipoles made with the solid lines are connected on the upper surface है ना, और जो ये डॉटेड वाले हैं ये ग्राउंड पर होंगे, ऐसे ही एक फीड लाइन से कनेक्टेड होंगे. ठीक है, so let me find some PPT. I think I have also made one dipole antenna, so I can show you the results. So such type of dipoles, you can see the figure 1A. figure 1A, ये जो आपको फीड लाइन दिख रही है ये आपकी सिग्नल प्लेन पर है. मींस your main wire of your feed line is connected to this feed line and the half dipoles are connected in alternate fashion. half dipole, पहले डाइपोल का हाफ डाइपोल लेफ्ट में है तो दूसरे डाइपोल का हाफ डाइपोल राइट में, फिर लेफ्ट फिर राइट फिर लेफ्ट फिर राइट. ऐसे ही इसी 1A फिगर में यू आर ऑब्जर्विंग सम शेडेड पार्ट. तो ये शेडेड पार्ट क्या है? ये माइक्रोस्ट्रिप एंटीना पर आपने बनाया है उसको, और ये इसका ग्राउंड प्लेन पार्ट जो है वो इसका शेडेड पार्ट है. जब इसको फिगर को, जब इस कंपोनेंट को रिवर्स कर दोगे, सो व्हाट विल हैपन, यू हैव टर्न दिस एंटीना. सो क्या होगा, ये वाला पार्ट इधर घूम के आ जाएगा एंड यू कैन सी द फिगर B. figure B. So this one figure, in figure B, this is the ground plane.
ठीक है, और जो पहला डाइपोल था उसका हाफ डाइपोल इज कनेक्टेड टू अ ग्राउंड प्लेन एंड यू कैन सी सिमिलर टाइप ऑफ फीडिंग स्ट्रिप इज देयर, सिमिलर टाइप ऑफ फीडिंग स्ट्रिप इज देयर। ठीक है, और जो ये थोड़ा सा ट्रेंगुलर टेपर दिख रहा है यहाँ पर जहां से ये वाइड वाला ग्राउंड प्लेन है, दिस इज फॉर प्रोवाइडिंग द इम्पीडेंस मैचिंग। ठीक है, ये इम्पीडेंस मैचिंग के लिए हमने बैलून बनाया है। ये बैलून ऐसा है जो कि आपको 3D फिगर में यहाँ पर दिख रहा है ना, 3D वाले एंटीना को व्हेन यू आर यूजिंग, देखो सच टाइप ऑफ बैलून्स यू आर यूजिंग इन 3D एंटीना, ये जो यहाँ पर ये जो व्हाइट व्हाइट सी जैकेट लगी हुई है, ये यहाँ पर इम्पीडेंस मैचिंग के लिए बैलून है। ठीक है, इट इज द केस ऑफ 3D एंटीना एंड इफ यू आर ऑब्जर्विंग द माइक्रोस्ट्रिप केस ऑफ दिस लॉन्ग पीरियडिक एंटीना, वहां पर ये छोटा से इस ट्रायंगुलर टेपर से ही काम हो गया। ठीक है, तो ये दिस इज द पावर एंड दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस माइक्रोस्ट्रिप टेक्नोलॉजी। सो यू नीड टू एनालाइज हाउ यू कैन कन्वर्ट, सो इसी वजह से बहुत ज्यादा कॉम्पैक्टनेस हम लोगों को अचीव हो जाती है। ठीक है, सो इतना अभी तक क्लियर है। अभी इसके फिर मैथमेटिक्स में जाएंगे हम लोग। ठीक है, इसमें फिगर वाइज किसी को डाउट है क्या? अगर डाउट है सो यू कैन आस्क। ठीक है, चलो आई थिंक किसी को डाउट नहीं है, सो वी आर मूविंग फर्दर, वी आर मूविंग फर्दर। ठीक है, चलो अब इसको हम इस वाले फिगर से समझने की कोशिश करते हैं। इस वाले फिगर से हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं। 1 मिनट। Okay, so you can see here, this is your log periodic antenna, this is your log periodic antenna, and in this figure, it is this antenna is fed from the lowest dipole. ठीक है, यहाँ पर देखो अगर फीड आप लोग देखोगे तो फीडिंग कहाँ से हो रही है, स्मॉलेस्ट डाइपोल से हो रही है। ठीक है, एंड इन द प्रीवियस एंटीनास, दिस एंटीनास द फीडिंग इज फ्रॉम द लार्जेस्ट डाइपोल, इज फ्रॉम द लार्जेस्ट डाइपोल। ठीक है, तो हम लोग किसी भी साइड से फीडिंग कर सकते हैं, बट प्रेफरेबली फ्रॉम द लार्जेस्ट साइड से हम लोग फीडिंग करते हैं, लार्जेस्ट डाइपोल साइड से हम लोग फीडिंग करते हैं। ठीक है, उससे फायदा क्या होता है कि अगर कोई बैक रेडिएशंस यहाँ से इन आगे वाले फर्दर वाले डाइपोल से आ रहे होते हैं, तो वो आगे ये पिछला वाला डाइपोल एज ए रिफ्लेक्टर का काम करता है और उसको डायरेक्टिविटी प्रोवाइड कर देता है। ठीक है, और जैसे इसमें देखोगे, इवन ये हमारे सिलेबस में नहीं है, तो यहाँ पर इन्होंने ये जो यूज किया हुआ है, ये एज ए रिफ्लेक्टर यूज किया हुआ है कि जो इसके भी बैक रेडिएशंस आएंगे, इसको ये एज ए रिफ्लेक्टर हम लोग यूज कर लेंगे और आगे की साइड में ये फॉरवर्ड करेगा। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग इसमें अपने सिलेबस वाले पार्ट पर। सो वी आर टॉकिंग अबाउट द लॉग पीरियोडिक एंटीना। लॉग पीरियोडिक एंटीना की शेप आप लोगों को समझ में आ गई। इसे लॉग पीरियोडिक क्यों कहते हैं? देयर इज अ थिंग, angle means it depends on angle, so the theta will be dependent, the theta will be dependent on the periodic function, on the periodic function on the periodic function of b ln r. Okay, theta may be some angle. Okay, and periodic function of b ln r, r would be the radius, r would be the radius. Suppose there is such type of log periodic antenna. Let me design something, let me design something. देखो जो सबसे पहले
जो एंटीना बना था वो लॉग पीरियोडिक एंटीना, देयर वाज कर्वेचर इन शेप, ठीक है, ऐसे करके कुछ शेप होगी, ये बिगड़ गया है मेरा थोड़ा सा, ठीक है। लेट मी शो यू द फिगर, यहाँ पर कुछ मिल सकता है। हाँ, सच टाइप ऑफ लॉग पीरियोडिक एंटीना वाज, ठीक है, इस टाइप का लॉग पीरियोडिक एंटीना हमारा सबसे पहला बना था, फर्स्ट, ठीक है। तो अब इसमें क्या है, देर इज आर, आर इज द रेडियस, आर इज द रेडियस ऑफ दीज डाइपोल्स, कर्वेचर डाइपोल्स, ठीक है। तो ये जो मैंने रिलेशनशिप बताई कि ये जो थीटा है, थीटा इज वेरी, theta would be a periodic function of b ln r. So r is the radius of these dipole that will be different for r1, r2, r3, r4 इस टाइप से, ठीक है। b will be the scaling factor, b will be the scaling factor, and periodic function may be anything. Periodic function may be, it may be a sine function, it may be a cos function, or any function. Okay, so if you want to write this relation, this is a very generalized relation about the log periodic antenna. Okay, so if you want to write, so you can write theta naught sine b ln r by r naught also, or r also, or something else, means it is providing a relation between r and r naught. Okay, sine is representing the periodic function. Okay, theta naught may be some amplitude or constant part of this function, okay, and theta will be the angle, theta will be the angle. So this is the generalized relation. So you can see angle, the this structure, log periodic antenna structure is dependent on the angle, and this is the periodic function of logarithm, logarithm of any value, logarithm of any variable, shape variable, ठीक है। सो ये जो लॉगरिथमिक वेरिएशंस हैं, लॉगरिथमिक वेरिएशंस की वजह से ही इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको लॉगरिथमिक पीरियोडिक, लॉगरिथमिक पीरियोडिक मींस लॉगरिथमिक और पीरियोडिक, पीरियोडिक ऑफ लॉगरिथमिक वैल्यू, ठीक है। इसी वजह से इसको हम लोग लॉगरिथमिक पीरियोडिक एंटीना या फिर लॉग पीरियोडिक एंटीना बोलते हैं, ठीक है, लॉग पीरियोडिक एंटीना बोलते हैं, ठीक है। अब इसके बहुत सारे वर्जन्स आए, बहुत सारे वर्जन्स आए, सो वी विल टॉक अबाउट वन वर्जन विच इज इन योर अंडर ग्रेजुएट सिलेबस, ठीक है। तो हम लोग उसको डिस्कस करेंगे, हाउ वी कैन डिजाइन अ लॉग पीरियोडिक एंटीना। सिंपल जो ये वाला आप लोगों ने लॉग पीरियोडिक एंटीना देखा था अभी पहले, ये वाला लॉग पीरियोडिक एंटीना कैसे डिजाइन होता है, ये हम लोग डिस्कस करेंगे। व्हाट वुड बी द पैरामीटर्स, व्हाट वुड बी द फॉर्मूलाज फॉर दिस वन, ठीक है। और इसका क्वेश्चन जरूर आता है बेटा, जितनी भी यूनिवर्सिटीज में देखोगे सब में एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा, बिकॉज इट कंसिस्ट लॉट्स ऑफ फॉर्मूलाज विद इन इट, ठीक है। तो इसको हम लोग समझते हैं। सो इसमें सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि देर आर सेवरल डाइपोल्स। सपोज करो ये एक डाइपोल है, और मतलब ये पूरा एक डाइपोल है, ये पूरा एक डाइपोल है, दिस इज द हाफ पार्ट ऑफ द डाइपोल, दिस वन इज द हाफ पार्ट ऑफ द डाइपोल, एंड दिस वन इज ऑल्सो द हाफ पार्ट ऑफ द डाइपोल, ठीक है। अब इसको मैं क्या बोल रहा हूँ, इसको मैं बोल रहा हूँ, लेट मी फॉलो द नॉमेनक्लेचर विच आई हैव written over here, otherwise there may be a confusion. Okay, so इसको मैं बोल रहा हूँ L1, L1 length of the half dipole and L1 length of the other half dipole, ठीक है। and there is two feed lines, there is two feed lines, इसको भी डबल नहीं करता हूँ, ऐसे ही करने देता हूँ, ठीक है। इवन दीज आर द सिलेंडर्स, ये भी एक सिलेंडर है, ये भी एक सिलेंडर है, ये भी सिलेंडर्स हैं, और ये भी सिलेंडर्स ही हैं, ठीक है। तो सपोज
separation of these two feed lines is very small, and we can represent the separation of feed line by small s. Small s is representing the separation of our feed lines. ठीक है, कोई भी चीज समझ में ना आए तो पूछ लेना, कोई भी नॉमेनक्लेचर अगर समझ में ना आए तो उसे पूछ लेना, ठीक है. एंड D is the diameter of the feed lines. D is there and D is there. The diameter of both feed lines are same. The diameters of both feed lines are same. ठीक है, यहां पर हम लोग क्या करेंगे, यहां से हम लोग इनपुट सिग्नल प्रोवाइड करेंगे, इनपुट सिग्नल. ठीक है, L1 हो गया. अब L2 आएगा आपका. L2 डाइपोल मींस सेकेंड डाइपोल. ये आपका सेकेंड डाइपोल हो गया. इसकी लेंथ L2 है. L2 इज द लेंथ ऑफ हाफ डाइपोल, हाफ डाइपोल, हाफ लेंथ ऑफ सेकेंड डाइपोल. ठीक है, L2 विल बी ऑल्सो देयर. फुल लेंथ विल बी 2L2. ठीक है, तो ऐसे ही यहां पर थर्ड डाइपोल हम लोग मान लेते हैं. थर्ड L3 and so on. There is N dipole, nth dipole is there. And the length of this nth dipole is Ln. ये कैपिटल N से लो इसे, कैपिटल N इज द नंबर. ठीक है, nth डाइपोल. ठीक है, अब इन डाइपोल्स के रिलेशंस क्या है. सपोज द डायमीटर of this first dipole is A1. The diameter of this second dipole is A2. Means the diameter of each dipole even is not same. They are different. ठीक है, diameter of this third dipole is A3 and diameter of this nth dipole is AN, capital N. ठीक है, L1, L2, L3 lengths are different, diameters are different, and the separation between each dipole, suppose this separation is S2. S1 क्या होगा, S1 होगा फीड लाइन से यहां तक का. Capital S1 and that would be S3. ठीक है, और ऐसे ही अगर हम लोग Ln और Ln-1 एक डाइपोल इसको देख लें, यहाँ पर एक और होगा ये जिसकी रेडियस, जिसका डायमीटर An-1 होगा, लेंथ इसकी Ln-1 होगी, है ना. इन दोनों के बीच का सेपरेशन क्या हो जाएगा, Sn. ठीक है, so this is the structure of your log periodic antenna. ठीक है, यहां तक नॉमेनक्लेचर में तो कोई दिक्कत नहीं है. अब मैंने देखो एक चीज और बोली थी आप लोगों को, एक चीज और बोली थी कि ये जो हमारे फ्रीक्वेंसी इंडिपेंडेंट एंटीनाज होते हैं, दैट डिपेंड्स ऑन द स्केलिंग फैक्टर. सिंगल स्केलिंग फैक्टर और मल्टीपल स्केलिंग फैक्टर, देयर मे बी several scaling factors also. ठीक है, तो
ये हमारा कोई एक स्केलिंग फैक्टर होगा जिससे ये हमारे L1 L2 L3 सारे स्केल हो रहे हैं, मींस एक दूसरे से रिलेटेड होंगे, A1 A2 A3 भी एक दूसरे से रिलेटेड होंगे। और फ्रिक्वेंसी इंडिपेंडेंट इसको क्यों कह रहे हैं कि ये सपोज करो कि if we will twice the scaling factor, for example, I am telling you the for example, if I am twicing the scaling factor, it may be possible its corresponding frequency will be half. ठीक है, according to the dimensions, ठीक है। So even these are related to the frequencies, but they are dependent on the shape, they are dependent on the angles, ठीक है। ये सारी चीजें आपकी मैंने आपको बता दी। एक और चीज, अगर हम लोग इसको ऐसे करके कनेक्ट कर दें और कनेक्ट करके मतलब ये कहीं पर एंगल एक बन रहा होगा, ये सारे स्केलिंग वाला हाँ बेटा अभी समझाता हूँ, बस अभी हम लोग और डिस्कस करेंगे स्केलिंग को। ऐसे करके कोई एक एंगल बन रहा होगा तो अल्फा विल बी द स्ट्रक्चरल हाफ एंगल, दिस विल बी द 2 अल्फा। उस फिगर में अल्फा दिखाया हुआ था यहाँ पर, बट दैट इज करेक्ट फिगर। देखो अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ, गूगल पे भी कितनी दिक्कतें मिलती हैं। दिस इज द करेक्ट फिगर, अल्फा, that will be alpha, structural half angle is there। और देखो अभी किसी और फिगर में ना गलत दिखाया हुआ था, कहां पर थी वो फिगर, ये देखो यहां पर अल्फा दिखाया हुआ है, दिस इज रॉन्ग, दिस वुड बी द 2 अल्फा, ठीक है। और इसमें फीडिंग भी इसने लोएस्ट डाइपोल से ली हुई है, ठीक है। और ये पेपर भी मुझे लग रहा है कहीं पे छपा हुआ ही होगा, इफ यू विल क्लिक देन द लिंक विल बी ओपन। सो इसी वजह से आप लोगों को मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि डोंट रिलाई ऑन एवरी सोर्स ऑफ द इंटरनेट, ठीक है, इट मे बी रॉन्ग, सो यू नीड टू रीड योर बुक्स अगेन एंड अगेन, ठीक है। नेट पर गलत चीजें मिल सकती हैं, दिस इज द करेक्ट इंफॉर्मेशन, अल्फा इज द स्ट्रक्चरल हाफ एंगल, ठीक है। तो ये हमने ऐसे 2 अल्फा लिखा है इसको, एंड दैट वुड बी अल्फा, ठीक है। स्केलिंग फैक्टर में अभी आप लोगों को समझाता हूं, आप लोगों का सारा स्केलिंग फैक्टर से ही जाएगा तो आप लोगों का सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। फिर अगेन हम लोग क्वेरी रिजॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो भी चीजें हैं, मतलब जैसे सपोज करो कि इसका लेंथ, डाइपोल के फर्स्ट डाइपोल का लेंथ L1 है और सेकंड वाले का L2 है, तो देयर वुड बी अ रिलेशन बिटवीन L1 एंड L2 थ्रू द स्केलिंग फैक्टर, ठीक है। देयर वुड बी अ रिलेशन बिटवीन A1 एंड A2 थ्रू द स्केलिंग फैक्टर, ठीक है। ऐसे ही A2 एंड A3 में भी जो रिलेशन होगी वो स्केलिंग फैक्टर से होगी, ऐसे ही AN-1 और AN में जो होगी वो भी स्केलिंग फैक्टर के थ्रू होगी, ठीक है। तो हमारे पास में इसके लिए एक स्केलिंग फैक्टर होता है लॉग पीरियोडिक एंटीना के केस में, दैट इज टाउ। टाउ हमारा क्या है, स्केलिंग फैक्टर, which can vary from 0 to 1। The value of scaling factor can be 0 to 1, ठीक है। एक और चीज हमारे पास में होती है स्पेसिंग फैक्टर फॉर द केस ऑफ लॉग पीरियोडिक एंटीना। स्पेसिंग फैक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय सिग्मा, ठीक है। स्पेस जो इसका बीच में स्पेसिंग फैक्टर, जो भी इसके बीच में जो स्पेसिंग है, ये जो S1 S2 S3 है, ये स्केल होंगे थ्रू द स्केलिंग फैक्टर सिग्मा, ओके। एंड बिकॉज this structure, this antenna is angle dependent, so this spacing factor, spacing factor and scaling factor tau will be related through alpha,
ठीक है। तो किसी भी क्वेश्चन में हम लोग ऐसे ही नहीं दे सकते किसी भी क्वेश्चन को कि भाई सपोज करो कि टाउ इज 0.64, कोई भी मतलब जैसे कि जनरली टीचर्स बना देते हैं, मैं भी क्वेश्चंस बनाता हूँ, टाउ इज 0.64 एंड सिग्मा इज 0.8, तो ऐसे हम लोग नहीं बना सकते बिकॉज देर इज अ रिलेशन बिटवीन tau and sigma and there is a graph, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ जिसके अकॉर्डिंग ये स्पेसिंग फैक्टर एंड स्केलिंग फैक्टर वेरी होते हैं और उसी ग्राफ के अकॉर्डिंग दोनों को चूज किया जा सकता है इफ यू वांट टू मेक अ लॉग पीरियोडिक एंटीना। so that is the graph you can see. Let me close my camera. I will also tell you the page number. So you can see the Balanis book. Okay, that is on page number 631, 631, and that is the figure 11.13 of CA Balanis book. ठीक है, और ये पेज नंबर 631 है। कौन सी एडिशन है ये? थर्ड एडिशन का है। ठीक है, सो लेट मी ड्रॉ समथिंग। आई एम ट्राइंग टू ड्रॉ or let me find on net scaling factor. Scaling factor, spacing factor of non-periodic antenna. So this figure is there. ठीक है, so this figure is there LPDA के लिए. So this is the scaling factor tau on the horizontal axis. I think it is visible to all of you and spacing factor is there. ठीक है, तो ये जो ऐसे करके corresponding line खिंची हुई है optimum sigma, इसमें लिखा हुआ है optimum sigma. ठीक है, so for a particular value of scaling factor you are bound to choose the spacing factor. ठीक है, randomly you can't choose. ठीक है, you can't choose at your own. So it will so tau and sigma will be given to you. तो तीन चीजें हो गई आपके पास में, एक अल्फा हो गया, स्ट्रक्चरल हाफ एंगल, ऑलवेज रिमेंबर द स्ट्रक्चरल हाफ एंगल। ठीक है, एक आपके पास में स्केलिंग फैक्टर हो गया एंड एक आपके पास में स्पेसिंग फैक्टर हो गया। तीन चीजों में से कोई दो चीजें गिवन होंगी बिकॉज देयर इज अ फॉर्मूला टू रिलेट ईच वन। ठीक है, व्हाट इज द फॉर्मूला? द फॉर्मूला इज sigma is equal to 1 minus tau over 4 tan alpha। ठीक है, सो क्वेश्चन में इन तीन चीजों में से सिग्मा, टाउ और अल्फा में से कोई भी दो चीजें गिवन होंगी एंड यू कैन फाइंड आउट द थर्ड वैल्यू। ठीक है, सो ये तीनों चीजें आपके पास में मिल जाएंगी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, अभी स्केलिंग फैक्टर की भी बात करेंगे और कुछ और चीजों की भी बात करेंगे। ठीक है, तो ये लॉग पीरियडिक एंटीना यूज किस लिए होता है? मैंने तुम लोगों को बता दिया कि ये वाइड बैंड के लिए यूज होता है। ठीक है, अब जैसे सपोज करो वाइड बैंड, अल्ट्रा वाइड बैंड, बहुत बड़े बड़े बैंड जो भी मतलब अल्ट्रा वाइड बैंड से भी ज्यादा के, मतलब इफ यू वांट टू डिजाइन एन एंटीना 3.1 टू 10.6, और ये वाला जो पेपर था हमारा इसमें भी बहुत लंबा चौड़ा बैंड हम लोगों ने अचीव किया था। कहाँ से कहाँ तक का था? लेट मी शो यू। 3.3 टू 20.7 गीगाहर्ट्ज बैंड था ये। ठीक है, 3.3 टू 20.7 गीगाहर्ट्ज बैंड वाज अचीव, तो दैट वाज अ वेरी बिग बैंड। ठीक है, तो अभी इसमें कैसे होगा, क्या होगा? लेट मी शो यू। तो सपोज करो 3.1 से 10.6 गीगाहर्ट्ज तक का हमें लॉग पीरियोडिक एंटीना डिजाइन करना है। तो what will be the response? The response will be like this. Okay,
Suppose this is the S11 in dB. So that is the 0 dB value, that would be the -5, that would be the -10, -20, -30 and -40. So something like that. We will consider the bandwidth corresponding to the -10 dB. -10 dB. Okay. So for this graph, that must be our lowest resonant frequency. If this is the frequency, so that would be 3.1. If this is the frequency in gigahertz, that would be the 3.1 gigahertz, and that would be the 10.6. Okay. So such type of response will be there. ठीक है. अब जो ये हमारा लॉन्ग पीरियडिक एंटीना है, इसका जो लॉन्गेस्ट डाइपोल है, where we have represented this length of half length of this longest dipole L1 by L1. ठीक है. The longest dipole of this dipole antenna will be responsible and will be designed corresponding to the lowest frequency. Longest dipole corresponding to lowest frequency. Dipole, longest dipole will be responsible for the lowest frequency. ठीक है. And shortest dipole will be highest frequency, will be corresponding or responsible for the highest frequency. ठीक है. तो अब हम लोगों को क्या निकालना है, डिजाइन करना है, डिजाइन अ लॉग पीरियोडिक एंटीना. सपोज द क्वेश्चन इज डिजाइन अ लॉग पीरियोडिक एंटीना LPDA, log periodic dipole antenna. Okay, full name is log periodic dipole antenna. शॉर्ट में हम इसको log periodic antenna बोल देते हैं, बट देयर इज डाइपोल. ठीक है. LPDA डिजाइन करना है फ्रॉम 3.1 to 10.6 गीगाहर्ट्ज. and suppose scaling factor tau is given as 0.85 and spacing factor sigma is 0.14. It is given. Only this data is given to you. ठीक है. एक और इनपुट इम्पीडेंस का भी दिया जाता है, वो भी बताएंगे जब जरूरत पड़ेगी. ठीक है. So 3.1 lowest frequency is given. So we can write F. अब now solution में first of all क्या करोगे, F min is minimum frequency is the 3.1 gigahertz. ठीक है. Tau is written here. Tau is written here, that is 0.85. Okay, sigma is 0.14. ठीक है. Now we need to design the log periodic antenna. So first of all, we will design the largest dipole. Largest dipole क्या है हमारा, L1. ठीक है. So L1 क्या होगा, L1 किसके कॉरेस्पॉन्डिंग होगा, लोएस्ट फ्रीक्वेंसी के मिनिमम फ्रीक्वेंसी के. लॉन्गेस्ट डाइपोल विल बी कॉरेस्पॉन्डिंग टू द लोएस्ट फ्रीक्वेंसी. ठीक है. सो L1 will be lambda max by 4. क्यों by 4? क्यों? Because the whole length of the dipole means if this separation S is minimum
or negligible, so the whole length is this. डाइपोल तो ये है, डाइपोल की लेंथ कितनी होती है हमारी, डाइपोल की लेंथ होती है हमारी लैम्डा बाई 2, ठीक है। सो L1 हमने क्या लिया हुआ है, L1 इज द हाफ लेंथ ऑफ द डाइपोल, सो व्हाट विल बी द L1, L1 विल बी लैम्डा बाई 4, लैम्डा बाई 4, ठीक है। L1 इज lambda by 4. So L1 we have written here, L1 is lambda by 4. Then what is this max? Lambda max wavelength, maximum wavelength will be corresponding to the minimum frequency. ओके, लैम्डा में और फ्रीक्वेंसी में रिलेशन क्या होती है, लैम्डा इज इक्वल टू सी बाई एफ, ठीक है। तो अगर ये मैक्स है तो फ्रीक्वेंसी मिनिमम होगी, अगर ये लैम्डा मिनिमम है तो फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होगी, ठीक है। सो लार्जेस्ट डाइपोल हम लोग डिजाइन कर रहे हैं, हमने अपने एंटीना स्ट्रक्चर में लार्जेस्ट डाइपोल को उसको कंसीडर किया हुआ है L1 को, ठीक है। सो वी विल डिजाइन दिस L1 एज द लैम्डा मैक्स by 4. And I'm again repeating, please remember L1 is representing the half length of your largest dipole. Half length. This is not the length of the largest dipole. If you will choose the length of the largest dipole, then you need to choose L or L1 dash will be lambda max by 2. Okay. So you can follow this nomenclature which I am following. Okay, you can follow the same nomenclature. So that would be lambda would be C by 4 F minimum. ठीक है. So you can calculate the L1. Can anybody tell me what is the L1? कोई कैलकुलेट करके बता सकता है, या फिर कोई भी लैपटॉप ये कैलकुलेटर लेके नहीं बैठा, मेरे न्यूमेरिकल में भी सॉल्व नहीं है, ठीक है। चलो यू विल कैलकुलेट, सी विल बी द 3 into 10 to the power 8, एफ मिनिमम इज 3.1 into 10 to the power 9 gigahertz, 4 is there, so you will get the L1, ठीक है। अब L1 आपको पता चल गया, कितना आ रहा है बेटा, कैन यू रिपीट अगेन, 9023 mm, 0.023 मीटर होगा, तो 23 mm या फिर कुछ भी, चलो ठीक है, तुम लोग कैलकुलेट कर लेना अपना, ठीक है। mm में ले लेना इसको, तो आपको इजी हो जाएगा बाकी कैलकुलेशन करने के लिए, बाद में इसे कन्वर्ट करके जो भी हो वो mm में लिख देना, ठीक है। डोंट वरी अबाउट द वैल्यूज, सो you can calculate yourself, it is very easy. So now we need to calculate the other parameters, L2 L3, this one, ठीक है। तो अब क्या होगा, L2 L3 Ln कैसे कैलकुलेट करेंगे, L1 तो चलो कैलकुलेट हो गई, अब आपके पास में फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। चलो अभी पहले L2 L3 का बता देता हूँ, एक आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी कैलकुलेट करने पड़ेंगे, हाउ मेनी नंबर ऑफ एलिमेंट्स विल बी देयर, ठीक है। हाउ मेनी नंबर ऑफ एलिमेंट्स विल बी देयर फॉर अ गिवन फ्रीक्वेंसी रेंज, और फ्रीक्वेंसी रेंज हमारी क्या थी, 3.1 गीगाहर्ट्ज टू 10.6 गीगाहर्ट्ज, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट भी अभी हम लोग करेंगे कैलकुलेट, सो लेट्स वेट फॉर फ्यू मिनट्स, ठीक है, अभी करते रहेंगे कैलकुलेट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू व्हाट इज द स्केलिंग फैक्टर, व्हाट इज द रोल ऑफ स्केलिंग फैक्टर, ठीक है। तो अब जो भी स्केलिंग फैक्टर है, जो भी ये L2 L3 L4 Ln-1 और Ln, ये जितनी भी लेंथ है ताऊ की, इसमें मल्टीप्लाई करते चले जाओ L में, और वो सब आपको मिलती चली जाए, ठीक है। तो L2 विल बी L
2 will be tau L1, L3 will be tau L2, टाउ की मल्टीप्लाई करते चले जाओ, टाउ आपका गिवन है 0.85, बिकॉज टाउ क्या है, स्केलिंग फैक्टर है। आप सारी लेंथ को स्केल कर दे रहे हो, आपने पहला डाइपोल की लेंथ चूज कर ली, अब आप क्या कर दे रहे हो, सबको स्केल कर दे रहे हो, स्केल, ठीक है, स्केल कर दिया, स्केल करके आपका सारी चीजें, सारी नहीं, कौन कौन सी, आपका एल, एस और ए मिल जाएगा, ठीक है। सो टाओ आपका, टाओ आपको एक चीज ध्यान रखनी है, कई बार हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि फीडिंग हम लोग फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लॉन्गेस्ट कर रहे हैं या फिर लॉन्गेस्ट टू स्मॉलेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको बस ध्यान क्या रखना है, टाओ जो होगा आपका, टाओ आपका स्मॉलर देन 1 होना चाहिए, स्मॉलर देन 1 होना चाहिए, ठीक है। और टाओ क्या होगा आपका, हमेशा इट शुड बी, टाओ विल वेरी लाइक ln plus 1 upon ln और sn plus 1 upon sn और an plus 1 upon an, ठीक है। if you want to, if you are putting n is equal to 1, n is equal to 1, so tau is L2 by L1, L2 by L1, and you have calculated this L1 as lambda max by 4, ठीक है। so you can calculate the L2. if you want to put n is equal to 2, so now you will have the formula tau is equal to L3 by L2, ठीक है। तो आप लोग इससे फिर ये कर सकते हो कैलकुलेट, बस क्या करना है, टाउ की मल्टीप्लिकेशन करते चले जाना है अगले 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 वाले में, ठीक है, ये कर सकते हो आप इजीली। ऐसे ही अगर आपको रेडियस इसकी गिवन हो, डायमीटर अगर इसका गिवन हो, मतलब पहले वाले डाइपोल का, सो यू कैन कैलकुलेट द अदर डाइपोल्स, अदर डाइपोल्स, डायमीटर ऑफ अदर डाइपोल्स आप कैलकुलेट कर सकते हो, जस्ट मल्टीप्लाई विद द टाउ, ठीक है। अगर गिवन नहीं है, ये गिवन नहीं है, तो आई विल टेल यू वन फॉर्मूला इन द लास्ट, इन द लास्ट, ठीक है। वैसे जनरली गिवन होगा, या तो ये गिवन होगा या फिर इनपुट इम्पीडेंस गिवन होगा। तो अभी इस चीज के बारे में आगे डिस्कस करेंगे। एस क्या है, एस है सेपरेशन, एस है आपका सेपरेशन, सेपरेशन है ये वाला, मीन्स S1, हाँ, S1, S2, S3, ठीक है। तो अब इस फॉर्मूले में, इस फॉर्मूले में इफ यू विल प्लेस, व्हाट वाज द फॉर्मूला, फॉर्मूला इज Sn प्लस 1, ये है Sn प्लस 1 ओवर Sn, ठीक है। you can put n is equal to 1, so you need to find S1 at least, S1, S1 should be known to you, because you will get a relation tau is equal to S2 over S1, ठीक है। और n is equal to 0 तो पुट कर नहीं सकते, ठीक है। सो इस S1 को आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक और फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना है, एक और फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना है। व्हाट इज दैट फॉर्मूला फॉर द S? I have also written one formula for sigma, that was 1 minus tau over 4 tan alpha, इसी के साथ में Sn plus 1 upon 4 ln, 4 ln। तो आप लोग ये फॉर्मूला लगाओगे पहले S1 निकालने के लिए, S पैरामीटर्स में डील करने के लिए क्या करोगे, Sn plus 1 by 4 ln, 4 ln, ठीक है। सिग्मा इज नोन, सिग्मा व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ सिग्मा, 0.14,
ठीक है, you are putting n is equal to 1, so you can calculate S2 with the value of 4 L1. L1 you have calculated with lambda max by 4, lambda max by 4. ठीक है, so you can calculate this S2, you can calculate this S2. First of all you will calculate the S2. Now how you will calculate this S1? The formula is tau is equal to S2 over S1. So now you can calculate the S1. ठीक है, S1 would be S2 by tau. ठीक है, तो जो आपका ये S1 है, S1 क्या है आपका? S1 है the distance of first dipole, the distance of first dipole from the feeding point, from the feeding point. So this S1 will be known to you. ठीक है, तो आप लोगों को क्या फॉर्मूला याद रखना है? You need to remember this formula also. This formula also. Sigma is equal to Sn plus 1 over 4ln. इसी वजह से इसको हम लोग स्पेसिंग फैक्टर कहते हैं. ये क्या था हमारा? स्पेसिंग फैक्टर. बिकॉज विदाउट दिस फॉर्मूला स्पेसिंग इज नॉट पॉसिबल. ठीक है, और आगे की स्पेसिंग कैसे स्केल हो रही है? विद द हेल्प ऑफ टाउ, विद द हेल्प ऑफ टाउ. मीन्स Sn plus 1 by Sn2, Sn plus 1 by Sn is scaled as the tau. ठीक है, तो स्पेसिंग में दोनों रोल आ गए आपके, सिग्मा का भी आ गया और टाउ का भी आ गया. बिकॉज योर S2 इज डिपेंडेंट और इज रिलेटेड टू सिग्मा. ठीक है, योर S1 इज ऑल्सो रिलेटेड टू सिग्मा. ठीक है, और आगे के जो S2, S3, S4, S5, Sn आप कर रहे हो वो टाउ के हिसाब से कर रहे हो, स्केलिंग फैक्टर के हिसाब से. ठीक है, तो आपके स्केलिंग फैक्टर और स्पेसिंग फैक्टर दोनों स्पेसिंग के टाइम पर काम आ गए. लेंथ वाले में, लेंथ में केवल आपका टाउ से काम चल जाएगा. सॉरी, रेडियस में भी आपका केवल टाउ से काम चल जाएगा. ठीक है, सो यू आर नोन टू स्केलिंग फैक्टर. हाउ? हाँ बेटा, एनी क्वेरी? Sir, here by calculation, yes sir. Sir, in this question, I am calculated this S1, S2, S3. So S1 greater than S2 and S3. So ये सर घटता जाता है क्या फिर इनके बीच की स्पेसिंग? हाँ, घटता रहेगा, घटता रहेगा. तभी तो S1, S2, S3 है, सब डिफरेंट आएंगे. देखो इवन ना रेडियस भी अलग होगी, इन सब की लेंथ अलग होगी. L1, L2, L3 ये सब घटेंगे. ठीक है, स्केल हो रहे हैं ये, देखो ना, ये ऐसे ही तो ग्राफ बना हुआ है, और जो इनकी स्पेसिंग है ये भी घटती रहेगी. ठीक है, जो यहाँ के हाँ कि बढ़े. हाँ सर, जैसे कि बीच वाला S2 ज्यादा हो मेरा और S1 और S3 के कंपैरिजन में, ऐसा नहीं हो सकता. क्योंकि ना जैसे जो भी हमारा स्केलिंग फैक्टर है बेटा, वो हमने तुमको बताया कि ये 0 से 1 के बीच में ही वो लाई करेगा. ठीक है, और जो भी हमारी, क्योंकि जो भी हम ये एंटीना बना रहे हैं, ठीक है, वो एक लिमिटेड फ्रिक्वेंसी के लिए बना रहे हैं. मींस जैसे कि हमारे पास में जो इनिशियल फ्रिक्वेंसी है वो भी लिमिटेड है. ठीक है, वो भी बाउंडेड है, और जो एंड फ्रिक्वेंसी है वो भी बाउंडेड है. ठीक है, हम इधर से भी बनाना शुरू कर सकते हैं इफ वी वांट टू फीड. इसी वजह से मैं तुम लोगों को बार बार बता रहा हूं कि इफ वी वांट टू फीड आवर एंटीना फ्रॉम लोएस्ट डाइपोल, फ्रॉम द लोएस्ट डाइपोल, सो हम लोगों को क्या करना होगा? हम लोगों को हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी की तरफ से उसे डिजाइन करना होगा. इन दैट केस आप लोगों का क्या होगा? जो अगर जैसे आप लोगों ने स्पेसिंग इधर से चूज की है, कहाँ गया है ना, इधर से आप लोग बनाना शुरू कर रहे हो, इधर से आप बनाना शुरू कर रहे हो. ठीक है, और इसको L1 दिया है, तो फिर L1, L2, L3 वो बढ़ते रहेंगे. बट आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि जो स्केलिंग फैक्टर है ना वो 1 से कम होना है. 1 से कम ही आएगा. बहुत ज्यादा इनफाइनाइट आप लोगों का 1 से ज्यादा ये नहीं हो सकता. बस दिस इज द थंब रूल. ठीक है,
मल्टीप्लीकेशन उसमें होगा, बट स्केलिंग फैक्टर शुड बी लोअर देन 1। सर ठीक है, मतलब इस वाले केस में तो फिर L1/L2 हो जाएगा ना। अगर हाँ, हम उस वाले केस में L1/L2 हो जाएगा, मतलब स्मॉलर टाउ विल बी, टाउ कहाँ गया मेरा कर्सर, हो जाता है थोड़ा सा, टाउ विल बी स्मॉलर डायमेंशन अपॉन द प्रीवियस लार्जर डायमेंशन, प्रीवियस और नेक्स्ट द लार्जर डायमेंशन। ठीक है, टाउ, बस तुम्हें थंब रूल ये याद रखना है, टाउ विल बी स्मॉलर देन 1, ये ध्यान रखना है तुम्हें, ये थंब रूल होना चाहिए। ठीक है, टाउ बड़ा नहीं हो सकता 1 से। ठीक है, ओके सर। ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोगों ने स्केलिंग फैक्टर को खूब अच्छे से पढ़ लिया, स्केलिंग फैक्टर की वैल्यूज हमें पता चल गई, हमें ये पता चल गया कि L1 L2 L3 और S1 S2 S3 S4 और A1 A2 A3 मींस डायमीटर ऑफ डाइपोल्स विल वेरी अकॉर्डिंग टू द स्केलिंग फैक्टर। ठीक है, अब हमारे पास में बस एक काम बचता है कि हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैलकुलेट करने हैं। हाउ मेनी नंबर ऑफ एलिमेंट्स विल बी देयर। ठीक है, हाउ मेनी नंबर ऑफ एलिमेंट्स विल बी देयर, सो देयर इज अ फॉर्मूला, there is a formula to calculate the number of elements, that is n is equal to n, capital N is the number of elements, 1 plus log bs, s स्क्रिप्ट में है। ठीक है, ये b ही है, केवल log b बोल सकते हो या bs बोल सकते हो, bs फॉर स्ट्रक्चरल बैंडविड्थ, bs जो है ये bs इज स्ट्रक्चरल बैंडविड्थ, स्ट्रक्चरल बैंडविड्थ। ठीक है, log bs ओवर log, इसको भी l स्मॉल, l विल बी स्मॉल, log 1 by tau। ठीक है, this formula is for calculating the number of elements of log periodic dipole antenna, 1 by tau is in bracket। ठीक है, अब tau तो known है, tau is known, what is bs, so we have to find the bs, bs is the structural bandwidth, so there is also a formula for bs. First of all we need to calculate the bs, and bs is b 1.1 plus 7.7 1 minus tau whole square cot alpha, cot alpha। ठीक है, अल्फा नोन है, 3 पैरामीटर्स टाउ, सिग्मा और अल्फा, इन तीनों में से 2 होंगे, वी कैन कैलकुलेट द थर्ड वन। ठीक है, अल्फा नोन है, टाउ नोन है, 7.7 numerical value, 1.1 numerical value, what is b, so b is the ratio of maximum frequency to the minimum frequency, b is f max over f min, so you can write this structural bandwidth formula as bs is f max over f min 1 plus 1 plus 7.7 1 minus tau whole square cot alpha। ठीक है, यहां से आप bs निकालोगे, you will put this bs, you will put this bs in this formula, in this formula, and you will calculate the number of turns n। ठीक है, अब एक चीज ये सपोज करो, you are having this number of turns n, suppose as 7.1, suppose, so you need to choose it, you need to choose it as 8, not the 7। अगर आपका ऐसे भी आ रहा है ना
6.05, तो आप सपोज, ठीक है, आपका n आ रहा है 6.05, तो आप क्या करोगे, नंबर ऑफ एलिमेंट 7 चूज करोगे, ना कि 6, ठीक है। चाहे ये आए तो भी 7 करोगे, और अगर n आ रहा है आपका 6.9 तो भी 7 ही चूज करोगे, ठीक है। मतलब नेक्स्ट इंटीजर वैल्यू चूज करनी है आपको, नेक्स्ट इंटीजर वैल्यू, यू विल चूज द नेक्स्ट इंटीजर वैल्यू, ठीक है। इवन इट इज 6.01, तो नेक्स्ट इंटीजर वैल्यू चूज करनी है। क्यों, रीजन क्या है, बिकॉज आपका जो भी एंटीना है वो एक लिमिटेड फ्रीक्वेंसी के लिए क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, 3.1 से 10.6 गीगाहर्ट्ज तक का बनाना है, ठीक है। और जो आपका लोएस्ट डाइपोल है, लोएस्ट डाइपोल जो है आपका, स्मॉलेस्ट डाइपोल जो है, वो कॉरस्पॉन्डिंग है इस फ्रीक्वेंसी की, ठीक है। अगर आप इसके एलिमेंट यहाँ पर 6 कर देते हो तो क्या होगा, थोड़ी सी फ्रीक्वेंसी आपकी ये यहाँ से निकल जाएगी, पास आउट हो जाएगी, ठीक है। तो हो सकता है मे बी आपका एंटीना 3.1 से 9.8 तक ही, मैं रैंडम फिगर ले रहा हूँ, 9.8 तक ही काम करे, या फिर 10.2 तक ही काम करे, थोड़ा सा बैंड ये 0.4 गीगाहर्ट्ज का रह गया, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, वी विल टेक इट द नेक्स्ट इंटीजर वैल्यू। तो उस केस में क्या होगा, इफ यू आर हैविंग अ नॉन इंटीजर वैल्यू, तो आपका क्या होगा, उस केस में आपका एंटीना हो सकता है, मे बी आई एम टेकिंग ओनली द रैंडम फिगर्स, अगेन आई एम रिपीटिंग, 10.8 तक काम कर रहा है, बट आपका जो 10.6 की प्रॉब्लम थी वो आपकी कवर हो गई, ठीक है। कुछ एक्स्ट्रा ही मिल रहा है, कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो दिस इज द थंब रूल फॉर दिस केस ऑफ एंटीना, ठीक है। काफी जगहों पर ये होता है, वी विल फॉलो द रूल कि इफ 6.5 से लो है, यहाँ से 6.5 से कम वैल्यू आई कोई, तो वी विल चूज द 6, इफ द वैल्यू इज ग्रेटर देन 6.5 सो वी विल चूज द 7, बट यहाँ पर हम लोग वो रूल फॉलो नहीं करेंगे, ठीक है। हमारा कुछ भी अगर आ रहा है तो नेक्स्ट इंटीजर वैल्यू लेना है, डेसिमल में कोई भी वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो दिस इज समथिंग अबाउट द लॉग पीरियोडिक एंटीना। लॉग पीरियोडिक एंटीना, एक और चीज अभी जो मैं बार बार तुम लोगों से कह रहा था कि या तो इसकी डायमीटर, डाइपोल का डायमीटर ए गिवन होगा, अदरवाइज इनपुट इंपीडेंस गिवन होगा, यहाँ पर इनपुट इंपीडेंस गिवन होगा या फिर ए गिवन होगा, ठीक है। तो इसके लिए भी एक फॉर्मूला है, जो भी एक आपका डाइपोल होता है, सपोज you are having a dipole of any length L, ठीक है। सपोज करो ये Ln डाइपोल है आपका, ठीक है, Ln डाइपोल है, और Ln नंबर का डाइपोल है, Ln नंबर, सॉरी दोबारा से डिजाइन करना, nth नंबर का डाइपोल है आपका, ठीक है। और इसकी लेंथ L स्मॉल n है, हेलो, और डायमीटर इसका an है, स्मॉल n, ठीक है। और नंबर है कैपिटल N, nth, ठीक है। तो देयर इज अ फॉर्मूला फॉर इनपुट इम्पीडेंस, okay, Z in is equal to what we will be doing, 120 designing balanced amplifier. A balanced amplifier is an amplifier with two parallel amplifiers. Ln that over there is an amplifier, AN amplifier B, and you have input minus and an output coupler. Which means a coupler is something 2.25. which splits your power into two halves, and also at the same time ensures ये a form, phase difference of 90 degrees. ठीक है। And मतलब यहाँ पर what फीड we लाइन have आपकी studied कनेक्ट in the होगी, lectures, what you will do, you will take an तो amplifier, ये जो do a DC यहाँ पर bias, इतनी select a लेंथ, bias point, आपको using a कितना given इनपुट transistor इम्पीडेंस model. यहाँ पर Transistor model प्रोवाइड is करा nothing रही but है, it's ये इस like चीज a का S फॉर्मूला, parameter characterized model. ठीक है। तो अगर And इनपुट then once you इम्पीडेंस have गिवन that, होगा, then you will look for Ln you have stability, you will calculated, stabilize your transistor. ठीक है।
you will look for So input gain impedance, circles, you will put try to input design for impedance here, maximum ln gain here, at source, and you can maximum find gain at out load. this an. Once you have that, ठीक you है, will go अगर and use an given simulation of होगा the matching तो structures, और अगर put it इनपुट back इम्पीडेंस से कुछ and see what रिलेटेड performance पूछता you है get. तो So कैलकुलेट balance करना, amplifiers are commonly अदरवाइज used बाकी because सबका they have an advantage. an The कैलकुलेट advantage करके is, first of छोड़ all, दें. ठीक है, जो भी आपकी if one of the कैलकुलेशंस बाद में amplifier chain आ stops जाएंगी, working, जैसे the सपोज करो second यू आर still, मेकिंग being 7 in एलिमेंट और parallel, the 9 second एलिमेंट still एंटीना, works. तो सबसे The लास्ट second में thing देखो, is अभी तो that तुम्हारे they, ऑनलाइन एग्जाम होते हैं तो कोई balance पैटर्न amplifier वैटर्न तुम्हें structure, बताने का कोई your मीनिंग gain नहीं है, is बट जैसे basically जनरली sitting अगर across the branches, एग्जाम आपके and आंसर if स्क्रिप्ट आपको लिखनी होती है आंसर शीट्स पर, using तो input जो and भी आपका output कैलकुलेट coupler होता helps है you in फाइनली getting a उसको very L1 इज a इक्वल टू better दिस VSWR दिस at mm, input and output. L2 So is this. first phase फाइनली is लिखने के बाद designing में an जैसे सपोज amplifier. करो I will 4 see how एलिमेंट time आपका goes, बना, and then we तो will design इसको couplers. इंसर्कल So करके usually आना what चाहिए. happens is that ऐसे this ही is जो how भी an आपकी amplifier स्पेसिंग आई circuit है looks like. It's a very simple. S1 is this, I used S2 is to this, S3 is this, do this kind of a course where we used S4 to also is this. fabricate it. ठीक है, So how mm does में it look with like unit that, the transistor and is sitting here in the radius. center, the black If it thing is which you see. concerned with your numerical Then or given I problem, have you should also write input the resistor values and a, of this A1, I A2, have some A3, resistor A4 network और for जो भी आपके stability. बीच में फॉर्मूले Then यूज I हुए use हैं stub उन्हें and इनसर्कल series करना चाहिए transistor जरूर. line for matching If you at are not input, similarly having matching a in time output. to change And your what pen, impedance you ठीक है, match to, ब्लैक that has to be और अदर कलर्स determined का by पेन यूज नहीं कर सकते, तो उसी से using इंसर्कल कर दो. एंड इन लास्ट इफ यू आर हैविंग सम using टाइम स्पेयर basically टाइम, जैसे 10 मिनट बच गए, तो जो आपने सर्कल किया हुआ है उसको the आप gain मान लो ब्लू circles से and आप the अटेम्प्ट कर रहे हो, stability तो ब्लू से by अटेम्प्ट the करने के बाद stability में analysis. उससे एक और If you see अगर up ऐसे कर here, दोगे ब्लैक से तो कुछ there नहीं are two होगा, bias है lines. ना. One is for इट विल the लुक input or नाइस. the gate, ठीक है, and जहाँ one पर is for the क्वेश्चन नंबर drain. लिखे हुए हैं, Bias क्वेश्चन line नंबर के design नीचे is also एक और interesting 2 because लाइनें ब्लैक से it has खींच to be दोगे या designed फिर in a इसको भी specific सर्कल way. कर दोगे तो कुछ We नहीं will go बिगड़ेगा. over it. ठीक है, Basic तो ये idea is 5 when you मिनट are आप designing जो an पेपर में amplifier, अपना बचाते हो you give उससे DC हमें to ये it, सब करना चाहिए. but RF signal ऐसे flows करके in बंद this कर दो. direction. क्वेश्चन नंबर Okay. तो जरूर लिखा Now हुआ what होना happens चाहिए. is when बहुत सारे RF बच्चे signal क्वेश्चन नंबर flows in छोड़ this देते हैं. direction, यार you इन want to चीजों make का sure कोई that वैल्यू नहीं no है RF इन goes in this केस part ऑफ योर ऑनलाइन एग्जाम. and no DC goes ठीक है, in this तो part, which अभी तो means 3:30 हो you रहे हैं, want to नेक्स्ट create टॉपिक kind of शुरू an कराने open का कोई circuit मीनिंग नहीं for है. your RF path looking एक towards the और bias चीज line. थोड़ी So सी we'll छूट talk गई about how to design those bias lines, जो and once you have these ये एस था, amplifiers, स्मॉल एस. these are 3 dB couplers. So you Small use coupler s at input. You is the use these two separation of amplifiers feed in lines. parallel and then combine it using another coupler. ये And जो you स्मॉल do एस full था, ठीक है, characterization. Of तो course, इसके लिए भी एक we फॉर्मूला don't have a है. lab, or we are not इसके doing लिए a क्या physical फॉर्मूला lab, है? so we won't be characterizing it. But we will try to replicate all this phenomena, Small all s this behavior is in simulation. D was the diameter I of feed lines. uploaded a transistor model. So first of all, before we Hyperbolic start, cos everyone has access to Z naught ADS ADS. upon 120. Okay, good. So what we will ठीक do है, here today ये is Z naught जो let's है just open ये your characteristic ADS impedance है. I will keep telling, Characteristic impedance of your feed line, not the input impedance. If you are not following up, just ठीक है, stop me right there. D क्या because है? D I don't want to diameter keep repeating things. So of better your you feed stop me lines if you है. are not following ठीक me है, back. तो आप So लोगों I को have पता uploaded है कि .7z इनपुट file, इम्पीडेंस ऑफ right? एनी And डाइपोल, इनपुट इम्पीडेंस, इनपुट इम्पीडेंस क्या है? unzip देखो that ये डाइपोल अगर आप on your कंसीडर कर रहे हो computer. फर्स्ट When you डाइपोल, will ठीक है, unzip, you will इसकी जो see this पर्टिकुलर name लेंथ है, मतलब सपोज करो इस पोर्शन की बात करें या फिर इस पोर्शन की बात करें या So फिर to open इतने that पोर्शन file, की go बात करें, file, एक अलग open अलग your इनपुट X-rays, इम्पीडेंस प्रोवाइड करा रही है. तो and जो then इसकी go and select लेंथ, ये L1 अगर आप बात कर रहे हो, basically go L1 and लेंथ select जितना इनपुट इम्पीडेंस प्रोवाइड करा रही है, the it file should be where matched, that workspace it is. should be So matched wherever with your the workspace is, characteristic just go impedance and of select your that file. feed line, of the characteristic impedance of your feed line. Suppose if you are using Let me the close this 50 and we'll ohm launch it. characteristic impedance feed Open line, ठीक है, workspace. 50 ओम कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस की फीड लाइन आप यूज कर रहे हो, तो जो ये L1 है, ये जो L1 लेंथ है, इसका जो इनपुट इंपीडेंस है जो कि आपने इससे कैलकुलेट किया, इस फॉर्मूले से कैलकुलेट किया, मींस ये जो L1 लेंथ है उसको कितना इनपुट इंपीडेंस प्रोवाइड कराना चाहिए आफ्टर दिस Ln लेंथ.
50 हो। I hope all of you are ठीक है? able to. तो ये भी हो सकता है, मतलब वैसे आपके पेपर के लेवल पे नहीं आएगा, You will see बट a file name ATR3814 कुछ अगर टफ लेवल के This is the file you क्वेश्चंस have को to और open in कॉम्प्लेक्स Windows. लेवल के क्वेश्चंस को देखा जाए You तो will उसमें go इस टाइप से file, हो सकता है। ठीक है, open एक टोटल लेंथ का है, workspace. टोटल लेंथ यू कैन कैलकुलेट द And then you टोटल will लेंथ विद select this file. जो भी आपका सेपरेशन डिस्टेंस आ रही है उसको समेशन done? करके S1 plus S2 plus S3 So this ऐसे is how करके ADS यहाँ looks तक like. This is निकाल ADS सकते main हो, window. प्लस It is called SN। workspace. ठीक है, So ऐसे करके everything is done एंटीना in की this टोटल लेंथ workspace. आप निकाल सकते हो, बट देयर इज Basically आल्सो अ फॉर्मूला what this workspace for do, you finding can the make your total length, schematics, that is you can run suppose L simulations, is the you total can length, create layouts, L you T can कर even देते हैं, run electromagnetic simulations, lambda and then you can max display your data. by So 4 this has two parts right now. One is 1 called minus schematic, 1 another is over called symbol. So if BS, you go and BS is the double-click structural schematic, this is bandwidth, what transistor model 1 looks over like. BS So it is a GaAs FET. Okay. cot You don't alpha. have to play with anything here. So what basically they have done, this is like a current source, and then they ठीक have है, modeled the ये आपका extrinsic and log periodic intrinsic antenna network and खत्म। the package effects of the transistor ठीक है, using lumped so elements. that is all about the log And periodic you antenna. guys won't have to If you change are anything having inside. any So this question, is already you a can ask model me. which is created. So what basically we will do, it has a it also has a symbol which has a gate, drain, कोई and source. क्वेश्चन नहीं है। Okay, so this transistor we will be using. पीरियोडिक फंक्शन वाला जो Okay, we will फॉर्मूला be था वो using एक this बार transistor. बता So दो first किससे step सीखा is, था वो। let's create a new अच्छा, schematic उसमें बेटा with कुछ file नहीं था, उसमें बस ये सपोज करो कि when and say log periodic BCID. antenna So was first step invented, will be to do जब वो BCID of इन्वेंट the हुआ होगा, transistor. जब इसका So you नॉमेनक्लेचर can name हुआ it होगा, whatever you want, तो बस उस BCID of फॉर्मूले the में ये transistor. था कि Okay, and create schematic. there is a So periodic once function. you click Two things create are there. schematic, you ठीक will है, see there this should be a window. periodic function. Okay. और periodic function So this is किसका? the schematic किसी window. Here are the लॉगरिथमिक का। panels. और लॉगरिथमिक So किसका ADS has निकालोगे? different लॉगरिथमिक panels. ऑफ एनी You can एंटीना do पैरामीटर। S parameter ठीक है, तो simulation जैसे by हमने उस clicking on S रेडियस parameter लॉगरिथमिक panel. एंटीना की Then there बात is की, something called as ठीक lump है, component. तो If हमने you want क्या to किया? use हमने LC, R का लॉग RC, लिया, parallel, series, लॉग capacitor, R ले लिया, inductor. There are ठीक है, different sorts और of उस components. लॉगरिथमिक R Then को there are हमने पीरियडिक बना दिया साइन के साथ, different DC आफ्टर component. If you want to do a मल्टीप्लाइंग DC इट बाय अ simulation. स्केलिंग फैक्टर B, जहाँ पे जो Second वो will हमने be B लिया to हुआ, ठीक है, तो बस वो उसकी create डेफिनेशन like को a समझाया हुआ है, template where you can और do, फिर उसके where you can बाद do में जो DC स्टडी आई, simulation. तो उसके बाद Okay. में रिसर्चर्स So ने क्या for किया, DC वो जो मैंने तुम simulation, लोगों को ग्राफ दिखाया, जो we ग्राफ basically दिखाया what जिसमें we ऐसे will करके do सिग्मा is that स्पेसिंग फैक्टर और we will टाउ के बीच में रिलेशन थी, use तो like a ऐसे ही transistor model. रिसर्चर्स We will ने first उस take the लॉगरिथमिक transistor फंक्शंस model. को So यूज we go करके here, लॉग पीरियडिक नाम का एक click एंटीना this बना symbol, दिया, right click और it, आप लोगों के सामने click place एक वो component. फॉर्मूला और वो फिगर Once you प्रोवाइड do कर दी place कि इफ यू component, वांट टू go to कैलकुलेट your एंड इफ यू वांट टू डिजाइन एनी touch लॉग screen and पीरियडिक place it. एंटीना, तो आप So you इस see, फिगर को यूज कर this सकते is basically your हैं, ठीक है, transistor, वो and जो if you फिगर go है वो inside उसी it from लॉगरिथमिक here, फंक्शन push से equal यूज हुई है, PRT उससे ही on the निकली है top, वो, ठीक है, you will see this model. ओके सर। So this model बस ये है, basically ठीक है, a चलो symbol फिर of it नेक्स्ट has been क्लास में हम created लोग so that मिलते we हैं। can use this instead of that ओके, big and बाय बाय, bulky टेक model. केयर। So step 1 is to create a अटेंडेंस DCID आप लोगों branch, की बहुत which शॉर्ट है, means चलो that ओके if we बाय। have a transistor, you know, how do we characterize for the